Smita. Smita Sharma here. I mean, the US State Department actually in the press statement of 10th May, it was in bold and headline that mentioned US brokered ceasefire between India and Pakistan. I'm just trying to understand if New Delhi actually rejected it outrightly, raised it with Washington DC then, that this framing was incorrect, or is it only now that India is making it clear that there was no US role in it? And just a quick question on whether there's any update on PK Sahu, the BSF constable, who has been in Pakistan captivity for more than 20 days now. Or he's been arrested there because he never crossed. Suhasini. Mr. Jaiswal, this is Suhasini Haidar from The Hindu. In continuation to Smita's question about whether India has raised with the US these clearly what you are calling false statements made by US President Donald Trump, that India did not broker, the US did not broker a ceasefire, that trade was not discussed. These are all things that have been said now on the record in camera. So have you raised this at any level? And similarly, yesterday at the MOD briefing, we heard them speak about the Chinese equipment, hardware support to Pakistan. I wanted to ask if this is something that is going to be taken up with China in terms of India and China's own bilateral relationship. So both of them, are these two things going to have any impact on India's relations with either the US or China? Neeraj. सर नीरज हूँ न्यूज 18। सर नीरज हूँ न्यूज 18 इंडिया से। आपने कहा कि कई अमेरिकी नेताओं की बात मिलिट्री जो कार्रवाई चल रही थी भारत की उस दौरान बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किस अमेरिकी नेता की बातचीत हुई? क्योंकि मीडिया रिपोर्ट में आया है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने उनसे बातचीत भी किया और यह भी अनुरोध किया था कि वो अपनी मिलिट्री कार्रवाई को थोड़ा कम करें, डी-एस्केलेट करें। और दूसरा सवाल यह है कि जब भारत ऑपरेशन सिंदूर में चल रहा था पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ माफ कीजिएगा, तो बांग्लादेश में अवामी लीग पर बैन लगा दिया वहां की सरकार ने। भारत इसको कैसे देख रहा? Okay, there first regarding your question about Secretary Rubio's comments. On that I have already spoken. I have told you how the understanding between India and Pakistan was bilaterally reached and what was the conversation that we had with other countries. On trade matters, I do understand that there is a proposal which has been made in Geneva. It has been made very recently, so I don't have further details on that, but for sure we'll update you with the matter as we progress with those negotiations. Smita, again, I have already answered those questions of yours when I talked about, the question of ceasefire as to who decided, what were the terms, when it happened, etc. So I would urge you to look at those comments of mine. I've told you that we have conveyed our position. I conveyed our position here on record, so I will request you to look at that. On the matter of PK Sahu, I don't have an update, so possibly we'll get you an update, but these are matters which pertain to the Ministry of Defence and they're looking into it. Again, Suhasini, on ceasefire, I've made India's position very clear, where we stand. So I would urge you to look at my comments. On the other question that you had, and possibly it had come up in the conversation or the press conference yesterday, there we have, I would say that we have obviously taken note of this. I direct your attention to the comments in the defense briefing about the extent of their effectiveness or otherwise. नीरज, आपके दो सवाल। प्रधानमंत्री की बात अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस से हुई थी और उस दरमियान जो बातचीत हुई थी दोनों नेताओं के बीच में, उसके आपको अवगत भी कराया गया है। जहां तक अवामी लीग की बात है, the ban on the Awami League without due process is a concerning development. As a democracy, India is naturally concerned at curtailment of democratic
freedoms and shrinking political space, we strongly support the early holding of free, fair and inclusive elections in Bangladesh. जो अवामी लीग पे बैन लगा है वो एक चिंता का विषय है। एक जो लोकतांत्रिक प्रणाली में एक तरीका होता है सब काम करने का, वो ड्यू प्रोसेस को दरकिनार कर किया गया है। एक लोकतंत्र के रूप में भारत जो वहां पर लोकतांत्रिक आजादी को रोका जा रहा है और जो वहां पर राजनीतिक गतिविधियों के लिए जो दायरा है वो कम हो रहा है, इसको लेके हम लोग चिंतित हैं। और साथ में ये हमारा ये मानना है, हमारा ये आह्वान है कि बांग्लादेश में जल्द से जल्द एक निष्पक्ष और समावेशी चुनाव कराया जाए। Can we then go? मनीष। सर, मैं मनीष झा हूँ, TV9 भारतवर्ष से। पिछले दिनों हमने एक और कैरेक्टर देखा, वो था तुर्की का रोल। जिस तरीके से टर्की के ड्रोन पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए, इसके अलावा टर्की ने लगातार इस मामले में पाकिस्तान का सपोर्ट किया। जब हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और टर्की उस समय पाकिस्तान के साथ है, जबकि आपको याद होगा 9/11 के टाइम में अमेरिका का डायलॉग था कि अगर आप हमारे साथ नहीं है तो आप आतंकियों के साथ हैं। तो टर्की के मामले में भारत की अब नीति क्या रहने वाली है? देखिए, जो सवाल का जवाब दे दिया गया उसको ना पूछे, कोई नया सवाल हो तो बताएं। येशी। This is Yeshi Seli from Business India. Are there any leads of the terrorists who attacked on the 22nd of April? And 3 terrorists were neutralized in Shopian today. Do they have any links with the terror attack of the 22nd? And in addition, when are the next DGMO talks likely to be? एक मिनट। बताइए। सर, ब्रह्म प्रकाश हूँ, न्यूज इंडिया से। मेरा सवाल है कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमारे मित्र देशों की भूमिका रही, उसको लेकर खासतौर से अमेरिका की भूमिका, ये देखा गया है कि भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू में बराबर तौला गया है, ये माना जा रहा है। क्या जिस तरह से भारत कहता रहा है, अमेरिका कहता रहा है कि दोनों क्लोज पार्टनर है, क्या भारत की डिप्लोमेसी को एक तरह से अमेरिका की तरफ से झटका लगा है? भारत इस पर दोबारा विचार करेगा? क्योंकि जिस तरह से रुख रहा है अमेरिका का, ये माना जा रहा है, सीधे शब्दों में कहें कि अमेरिका ने धोखा दिया इस पूरे मामले में। क्या कह रहे हैं? मधुरेंद्र। सर, मधुरेंद्र, मैं न्यूज नेशन से। यह स्पष्ट है कि चीन और तुर्की के हथियार भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए गए, और इसी संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की जो आज ब्रीफिंग हुई है, क्या उसमें डिफेंस अटैचे चीन के और तुर्की के बुलाए गए थे? क्या बुलाए जाने पर उन्होंने अटेंड किया? दूसरा सवाल मेरा यह है कि हमने एक ट्रेंड क्रिएट किया है कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी एक्ट ऑफ वॉर। तो क्या उसको डिफाइन कर सकते हैं कि क्या आगे होने वाला कोई भी भारत पर पाकिस्तान की तरफ से या पाकिस्तान प्रायोजित आतंक की तरफ से हमला सीधे तौर पर कार्रवाई के तौर पर पाकिस्तान पर वॉर के तौर पर देखा जाएगा? हम सीधे युद्ध थोपेंगे या युद्ध करेंगे पाकिस्तान से? मनीष जी, पहले तुर्की को लेके काफी सारे सवाल थे। देखिए, सुहासिनी के सवाल के जवाब में मैंने बताया था कि हमारा क्या नजरिया है, और तुर्की को लेके और चीन के लेके उनके जो वेपन्स वगैरह को लेके जो डिफेंस की ब्रीफिंग में भी खुलासा किया गया। तो मैं कहूंगा कि आप जो वहां पर बताया गया बात, उस पर ध्यान केंद्रित करें। जहां तक हम लोग का सवाल है, हम लोग ने बताया कि हम लोगों ने इन गतिविधियों को नोट किया है, और साथ ही में जो कमेंट्स डिफेंस ब्रीफिंग में दिया गया था इन चीजों के बारे में, उस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। और साथ ही साथ उन्होंने इसकी इफेक्टिवनेस जो कितना पुरजोर रहा उसके बारे में या नहीं रहा उसके बारे में उन्होंने बात किया था। Yeshi, the investigations are on, so we'll have to wait for the progress. Obviously, when we make progress, we'll keep you updated. DGMO talks, I understand, had happened yesterday, and many of you were informed of the developments and the discussion that had happened. The rest, as and when the next DGMO level talks happen, you'll be
kept informed of it. ब्रह्म प्रकाश जी, आपने जो बात की हाइफिनेशन की बात की कि एक तरीके से भारत पाकिस्तान दोनों साथ में बंध गए, एक हाइफिनेशन हो गया, तो उस पर मेरा हम लोग का यह मानना है कि इट इज क्वाइट द रिवर्स. देयर इज widespread understanding in the world that Indian tourists were the victims of terror at Pahalgam, and that the epicenter of terrorism is across the border in Pakistan. A number of foreign leaders, बहुत सारे विदेशी जो नेतागण हैं, उनसे जो हमारी बातचीत हुई उसमें उन्होंने माना कि भारत को अपने को डिफेंड करने का उसका हक है और अपने लोगों को बचाने का, उसकी सुरक्षा का प्रदान करने का उनको हक है. मैं आपका ध्यान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो रेजोल्यूशन है, प्रेस स्टेटमेंट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने 25 अप्रैल को जो अपनाया था, उस पर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा. वो प्रेस स्टेटमेंट बड़ा क्लियरली ये बताता है, मैं कोट कर रहा हूं, देयर इज नीड टू अपहोल्ड परपरेटर्स, ऑर्गेनाइजर्स, फाइनेंसर्स and sponsors of this reprehensible act of terrorism accountable and bring them to justice. It stressed that those responsible for this killing should be held accountable. तो इससे आप जो हाइफिनेशन की बात कर रहे हैं ना, उसके पूरे ही विपरीत लोगों ने माना है कि एक देश है जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है, इंडस्ट्रियल स्केल पर आतंकवाद पैदा करता है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. अमेरिका ने भारत को धोखा दिया इस पूरे मामले में. अमेरिका, जहां तक अमेरिका और अन्य देशों के बारे में हम लोगों ने अपना पक्ष आपके सामने रखा है. वी हैव श्रीधर, सॉरी, एक मिनट, ये इनका मधुरेंद्र का सवाल रह गया था. मधुरेंद्र, देखिए, तुर्की और चीन के अस्त्र के बारे में हमने अभी जवाब दे दिया है आपको. और जहां तक एक्ट ऑफ टेरर की बात है, हमारे तरफ से हमारे लीडरशिप के लेवल पे कहा जा रहा है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जहां सवाल है, हमारा जीरो टॉलरेंस रहेगा. जब भी कोई इस प्रकार का घटना होता है तो हम उसका